हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्रामर क्लास। लास्ट क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्विज सॉल्व किया था, तो आई होप अब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर है। अब आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज काइंड्स ऑफ नाउन्स। So children, tell me, what are nouns? Words which are used as names of persons, animals, places or things are called nouns. मतलब कि सारे नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं वो नाउन्स होते हैं। ये हुई नाउन की डेफिनेशन। वी विल राइट डाउन दिस डेफिनेशन इन द कॉपी। ओके चिल्ड्रन, काइंड्स ऑफ नाउन्स। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन्स को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर नाउन। A proper noun is the special name of a particular person or place. For instance, Ashok is a proper noun because it is the name of one particular boy. In the same way, New Delhi is a proper noun because it is the name of a particular city. A proper noun always begins with a capital letter. Okay children, so what we understood by a proper noun? Proper noun किसी एक इंसान, जगह या चीज का पर्टिकुलर नाम होता है which is very specific. जैसे कि ऊपर हम एग्जाम्पल दिया था अशोक। अशोक एक लड़के का नाम है, हेंस इट इज अ प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन को हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। लुक एट दीज सेंटेंसेस। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन न्यू दिल्ली। इट्स रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्रॉपर नाउन्स हैं उनको कैपिटल में नहीं लिखा है। Look at the second sentence. The president of India lives in New Delhi. This is right because जितने भी proper nouns हैं उनको हमने capital में लिखा है। Okay children, so let's move forward. Proper nouns are special names. Let us see if we can make a list. People's name, लोगों के नाम, like महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, हैरी पॉटर, सिंड्रेला, रॉजर फेडरर, साइना नेहवाल, सचिन तेंदुलकर, मिस्टर शर्मा, सुषमा। Or names of months and days of the week: January, February, March, April, May, June, July, August and so on. अब कुछ famous buildings: the Taj Mahal, the Colosseum, the Eiffel Tower, Elephanta Caves, the National Museum, the Statue of Liberty, Gateway of India, the Grand Canyon, the Jog Falls. ये सब हमारे proper nouns के examples हुए। Let's continue. Let's take a look at some more examples. Serena Williams, Madhuri Dixit, Kalpana Chawla, James Bond, Sherlock Holmes, Baichung Bhutia, Abraham Lincoln. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. The Leaning Tower of Pisa, Rashtrapati Bhavan, Rajrajeshwar Temple, Charminar, Kaziranga National Park, Humayun's Tomb. Okay children, now let's look at the name of a few countries: India, China, Great Britain, United States of America, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, France, Iran, Hong Kong, Singapore, Japan, Italy, Spain. Let's take a look at the name of few cities: New Delhi, London, Washington, Rome, Tokyo, Islamabad, Cairo, Madrid, Paris, Beijing, Mumbai, Kolkata, Chennai. Names of oceans, rivers, lakes, seas and mountains. So that will be the Himalayas, the Alps, the Indian Ocean, the Atlantic Ocean, the Niagara Falls, the Gangas, the Kaveri, the Red Sea, the Arabian Sea, the Nile, Lake Michigan, the Amazon. Okay children, तो ये थे हमारे proper nouns के examples. Now let's see if we can solve the exercises. Okay children, so look at the first question. Rewrite the following sentences putting in the capital. हमें यहाँ पे जो proper nouns हैं उनको capitalize करना है. So look at the first sentence. Paris is the capital of France. यहाँ पे Paris का P capital and France का F capital. The man who first sailed to America was Christopher Columbus. तो यहाँ पे D का T capital, अमेरिका का ए कैपिटल, क्रिस्टोफर का सी कैपिटल एंड कोलंबस का भी सी कैपिटल, बिकॉज दीज आर ऑल प्रॉपर नाउन्स. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. लास्ट सैटरडे हेनरी ब्राउन टुक हिज सन्स जॉर्ज, पीटर एंड जॉन टू सी जयपुर. तो लास्ट का एल कैपिटल, हेनरी, सैटरडे का एस कैपिटल, हेनरी का एच कैपिटल, ब्राउन का बी कैपिटल, जॉर्ज का जी कैपिटल, पीटर का पी कैपिटल एंड जॉन का जे कैपिटल और जयपुर का भी जे कैपिटल, बिकॉज दीज आर ऑल प्रॉपर नाउन्स.
Look at the next sentence. The Nile is a large river in Egypt. तो यहाँ पे द का टी कैपिटल, बिकॉज ये हमारा सेंटेंस का स्टार्टिंग है, नाइल का एन कैपिटल और इजिप्ट का ई कैपिटल. लेट्स लुक एट द फिफ्थ सेंटेंस. द रेड सी इज टू द ईस्ट ऑफ इजिप्ट. द का टी कैपिटल, रेड का आर कैपिटल, सी का एस कैपिटल एंड इजिप्ट का ई कैपिटल. ओके चिल्ड्रन, आई होप दिस एक्सरसाइज इज क्लियर टू यू. ये वाली एक्सरसाइज सभी बच्चे अपनी बुक में सॉल्व करेंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Let's continue with this exercise. The Golden Temple is at Amritsar. T capital, Golden का G capital, Temple का भी T capital और अमृतसर का A capital. The largest city in America is New York. तो यहाँ पे D का T capital, America का A capital, New York में N और Y capital. Connaught Place is in New Delhi. Connaught का C capital, Place का P capital, New का N capital and Delhi का D capital. King George was the ruler of Great Britain. King का K capital, George का G capital, Great का G capital, Britain का B capital. We sailed to England on the Queen Elizabeth. Okay children, तो W, V का W capital, England का E capital, Queen का Q capital and Elizabeth का भी E capital. Okay, I hope this exercise is clear to you. अब हम common nouns के बारे में read करेंगे. A noun which does not point out to any particular person, place or thing, but is common to all persons or things of the same class or kind is called a common noun. मतलब कि ऐसा noun जिससे हमें किसी particular person या place या चीज़ का ना पता चले, but जो एक कॉमनली एक ग्रुप ऑफ लोगों या चीज़ों की तरफ इंडिकेट करे, वो होता है कॉमन नाउन. ओके चिल्ड्रन, ये कॉमन नाउन की डेफिनेशन है. हम इसको हमारी कॉपी में नोट डाउन करेंगे. लेट्स रीड अहेड. द नेम बॉय कैन बी गिवन टू एनी एंड एवरी बॉय, टू अफजल, अशोक, रामा, जॉन एक्सेट्रा. इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर बॉय. इट इज अ नेम कॉमन टू ऑल बॉयज. It is therefore called a common noun. In the same way, the name city is called a common noun because it does not point out to any particular city such as London, Mumbai, Kolkata, but is used for any and every city in any part of the world. मतलब कि जैसे अगर हम कहते हैं boy, तो boy is a common noun. क्यों? ऐसा क्यों? Because कोई भी लड़का boy हो सकता है unless and until we take a particular name. सिमिलरली सिटी भी एक कॉमन नाउन है. क्यों? क्योंकि दुनिया की कोई भी सिटी को हम सिटी बोल सकते हैं अनलेस एंड अनटिल वी स्पेसिफाई अ कॉमन नेम. आई होप इट इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन. लेट्स सॉल्व एन एक्सरसाइज. स्टडी द नाउन्स इन द बॉक्स एंड थिंक व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स दे नेम. देन आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. रिमेंबर टू पुट इन ऑल द कॉमास. वन हैज बीन डन फॉर यू. ओके चिल्ड्रन, तो हमें क्या करना है, हमें ये जो बॉक्स में जो गिवन वर्ड्स हैं इनको रीड करना है और इनको अलग अलग कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करना है. सो लेट्स सी विच 4 आर द सीजन्स. इनमें से सीजन्स हैं स्प्रिंग, समर, विंटर एंड ऑटम आर ऑल सीजन्स. अब हमें ऊपर बॉक्स में से डिजीजेस फाइंड आउट करनी है. तो ऊपर डिजीजेस कौन कौन सी है? मम्प्स, इट्स अ डिजीज. लेप्रेसी, इट इज ऑल्सो अ डिजीज. उसके बाद मीजल्स, इट इज ऑल्सो अ डिजीज. और मलेरिया, मलेरिया इज ऑल्सो अ डिजीज. तो ये हो गई हमारी 4 डिजीजेस. तो इनको भी हम नोट डाउन कर लेंगे. देन वी हैव टू फाइंड आउट 4 वेजिटेबल्स. अब ऊपर से वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं? अनियन, and then after onion, tomato, spinach and peas. These are the 4 vegetables. Okay, which 4 are clothes. अब हमें 4 टाइप के clothes identify करने हैं ऊपर से. तो the first one is blouse, then frock, then trousers. One more is left. Can you find it out? Socks. Yes, so these are 4 types of clothes. Okay children,
लेट्स कंटिन्यू. विच 4 आर टूल्स? हमें 4 टूल्स आइडेंटिफाई करने हैं. तो 4 टूल्स क्या हैं? स्पेड, हैमर, चिजल एंड सॉ. ओके चिल्ड्रन, तो ये 4 हमारे टूल्स हो गए. देन विच 4 आर वाइल्ड एनिमल्स? हमें ऊपर से 4 वाइल्ड एनिमल्स भी आइडेंटिफाई करने हैं. सो लेट्स टेक अ लुक. जिराफ, टाइगर, लेपर्ड एंड वुल्फ, ये हमारे 4 वाइल्ड एनिमल्स हो गए. ओके चिल्ड्रन, सो आज हमने नाउन स्टार्ट किया था. हमने प्रॉपर नाउन्स एंड कॉमन नाउन्स के बारे में रीड किया एंड हमने एक्सरसाइजेस भी सॉल्व किए. सो बिफोर द नेक्स्ट क्लास आप प्रॉपर नाउन्स और कॉमन नाउन्स की डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे का कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.